بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اہلیان کراچی کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی شہریوں کے تحفظ کا مشن کراچی میں 123 ماڈل کاریں شہر کی مانیٹرنگ کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 4 ماڈل کاروں سے شارع فیصل پر مانیٹرنگ کا آغاز۔ ماڈل کار جدید کیمروں اور ٹولز سے لیس۔ وزیر داخلہ سندھ کا سیف سٹی پروجیکٹ کی پہلی ماڈل کار کا معائنہ۔ ضیاء الانجار بولے، شہریوں کے تحفظ میں سیف سٹی پروجیکٹ اہم ہتھیار ثابت ہوگا۔ بر وقت قدم نہ اٹھایا تو ہم عالمی سطح پر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کراچی میں سیف سٹی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا مشن جدید کیمراز اور ٹولز سے لیس ماڈل کار پروجیکٹ کے لیے لانچ کر دی گئی۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے سیکرٹری داخلہ کے ہمراہ ماڈل کار کا معائنہ کیا اور کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ حکومت سندھ کے تحت پہلے مرحلے میں 4 ماڈل کارز کے ذریعے شارع فیصل پر مانیٹرنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت مجموعی طور پر 123 ماڈل کارز شہر کی مانیٹرنگ کریں گی۔ ضیاء الانجار کا کہنا تھا کہ پرامن ماحول اور شہریوں کے تحفظ میں سیف سٹی پروجیکٹ ایک اہم ہتھیار ثابت ہوگا۔ اگر ہم نے آج کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم عالمی سطح پر بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں اور شاہراہوں کو مختلف نوعیت کے جرائم سے محفوظ اور ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے میں سیف سٹی پروجیکٹ ایک بہترین ہتھیار ثابت ہوگا۔ کراچی میں جرائم کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ ماہ اگست میں ہزاروں شہریوں کو مال متاع سے محروم کر دیا گیا۔ شہر میں قتل و غارت کے واقعات میں 48 افراد جان سے چلے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی میں جرائم کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ اگست کا مہینہ بھی شہر قائد کے باسیوں پر بھاری رہا۔ شہری کروڑوں روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز گوا بیٹھے۔ اگست میں ملزمان نے شہریوں کو 4041 موٹر سائیکلوں سے محروم کیا۔ ڈاکو شہریوں سے 173 کاریں بھی لے اڑے۔ 1737 افراد سے موبائل فونز بھی چھینے گئے۔ مہینے بھر اغوا برائے تاوان کے بھی 30 کیسز سامنے آئے۔ بھتہ خوری کے بھی 6 واقعات رپورٹ ہوئے۔ قتل و غارت کے مختلف واقعات میں 48 افراد جان سے چلے گئے۔ شہر قائد مسائلستان بن گیا۔ پاک کالونی کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شاہراہ کی خرابی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اکثر شیخ کی رپورٹ۔ شہر کا خراب انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے سر درد بن گیا۔ پاک کالونی کی سڑک گڑھوں میں غائب۔ کراچی کی سڑکوں کا برا حال، کوئی نہ رہا پرسان حال۔ ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت گاہ بن گئی۔ شہری کہتے ہیں واٹر بورڈ کے مرمتی کام کے باعث آئے روز سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث سڑک پر گھڑے پڑ گئے۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر پر مجبور ہیں۔ جب سے ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے یہ سڑک اسی طرح ہے، اور یہاں پر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پانی کے جو ہائیڈرنٹس وہاں کے ہیں انہوں نے یہاں لائنیں ڈالی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن اس کی لیکیج سیپیج ہوتی ہے اور وہ لوگ آ کر اسے اکھاڑتے ہیں، آئے دن اکھاڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ روڈ بنا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی تھوڑا سا روڈ یہ سیدھا ہوگا، پانی کی ایک لائن لیک ہوگی، یہ برباد ہو جائے گا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ علاقے کی سڑک کی مرمت جلد از جلد کرائی جائے تاکہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل نہ ہو۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ اکثر شیخ، سٹی 21۔ شہر میں گیس کے مسائل سنگین ہونے لگے۔ جمشید روڈ کی گنج پور کالونی کے مکین 2 سال سے گیس کی سہولت سے محروم ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ جمشید روڈ کی گنج پور کالونی میں گیس کے مسائل گھمبیر۔ 2 برس سے علاقہ مکین گیس جیسی سہولت سے محروم۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس میٹر اور پائپ لائنیں موجود ہونے کے باوجود گیس نہیں آتی۔ SHGC کے شکایتی مراکز میں شکایات کر کے عاجز آ چکے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ صرف نمائشی طور پر سوئس صدن کا عملہ علاقے میں آتا ہے اور صورتحال کا جائزہ لے کر چلا جاتا ہے۔ LPG سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، گیس نہ ہونے کے باوجود گیس کے بل آتے ہیں۔ 2 سال سے یہاں پر گیس نہیں ہے۔ جمشید روڈ کا علاقہ ہے یہ، گنج شکر کالونی کا، اور تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا گیس کا۔ حالانکہ بہت لوگ گئے ہیں، ہم لوگ سارے یہاں سے میٹر کے اپنا گیس کے بل وغیرہ لے کے گئے وہاں ان کے دفتر میں، لے جا کے بولا آتے ہیں بس دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے اس کا سنوائی۔ سلنڈر پہ کیا کرے، بچوں کو تو کھانا دینا لکڑیاں بھی جلاتے، سلنڈر بھی جلاتے۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنا کر ان کی مشکلات حل اور احساس محرومیوں کو ختم کیا جائے۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھم نہ سکی۔ سپر ہائی وے سے متصل علاقے بجلی کی بندش سے شدید متاثر۔ مکین کہتے ہیں کہ 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی عجیرن بنا دی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں وسیم افتخار کی رپورٹ۔
शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। सुपर हाईवे से मुत्तसिल गरीबाबाद में कई घंटों की लोड शेडिंग ने निजाम जिंदगी मुतासिर कर दिया। मकीन कहते हैं बिजली की बंदिश ने पानी की सहूलत भी छीन ली कि इलेक्ट्रिक के शिकायती मरकज पर कोई सुनवाई नहीं होती। महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़कर रख दी। 8 से 10 घंटे की तकरीबन लोड शेडिंग होती है और उसके अलावा यहाँ पे कोई मतलब ऐसी ना गैस ना पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिजली जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि पानी जो चलता है वो भी बिजली के ज़रिए ही चलता है। 1000 में 4000 रुपये पिलाया था महीने में, दूसरे महीने में 12000 आया सारा 12570 रुपये आया। अभी आया 3000 रुपये। बिजली भी नहीं चलती है, 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं चलती है। इसमें क्या करेगा गरीब आदमी हम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जमात इस्लामी का मेयर होता तो टाउन चेयरमैन धक्के न खाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के मुखालफिन पर वार। लांडी में मेंबर साजी तकरीब से खिताब। बोले कराची में बिजली, पानी और गैस का बहरान है। सिंध का 98% रेवेन्यू कराची देता है। शहरियों के लिए कोई सहूलत नहीं। कराची में MKM ने एक भी नशिस्त नहीं जीती। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। जो बिजली का बहरान है कि इलेक्ट्रिक माफिया यहाँ शहर कराची में मुसल्लत है। गैस का बहरान, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और अभी से गैस का बहरान शुरू हो गया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं और अपने पसंदीदा लोगों के लिए आप चले जाएं दफ्तरों में, आप सेक्रेटरीट चले जाएं, भरे हुए होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध ने तालीम पर इख्तिलाफ को बदकिस्मती करार दिया। सरदार अली शाह को वफाकी हुकूमत के डाटा कलेक्शन पर भी एतराज़। मरदम शुमारी के आदाद शुमार समझ से बाला तर करार दिए। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। और दूसरा, मुझे कभी भी जिंदगी में बड़े लोगों के साथ उठने बैठने के आदाब नहीं आए। हम 21वीं सदी में बच्चों के पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं और हम गिनती करके बता रहे हैं कि इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल में शामिल नहीं है, हमारी बनाई गई स्कूल का हिस्सा नहीं बने। फंक्शनल लीग लेबर विंग के ने म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस से इत्तेहाद कर लिया। दोनों मजदूर अंजुमनों के लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन के गैर कानूनी अहकामात की सख्त मजम्मत। फैसले वापस लेने का मुतालबा किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लेबर विंग और म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस एक पेज पर आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग के वफद ने म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकज सदर जुल्फिकार शाह से मुलाकात करके लेबर विंग फंक्शनल लीग को अलायंस में जम करने का ऐलान कर दिया। सदर वली वारसी और सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी और खुर्रम खान बोले, मुश्तरका जद्दोजहद से मुलाजमीन का इस्तेसाल करने वालों का मुहासबा करेंगे। सदर म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खुसूसन लियाकताबाद टाउन में किसी सूरत गैर कानूनी अहकामात को लागू नहीं होने देंगे। एक पाबंदी अपने तौर पर ये लगाई है कि जो मुलाजिम है कोई भी या अफसर जो है वो जो है उस पर जो है टॉन्स के बारे में या अपने ड्यूटी और जॉब के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये आईन पाकिस्तान की जो है वो दफ़ात की खिलाफ वर्जी है। खुसूसन लियाकताबाद के जो चेयरमैन है फराज हसीब साहब, मैं उनको एक बरादराना मुखलिसाना मशवरा ये दूंगा कि बराए करम वो लोगों से ये बोलने का हक न छीने। तो मजदूर काज के लिए बात करे तो उसके लिए हम ऊपर भी बात करेंगे और इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही शाह साहब के साथ और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो वर्करों के मसले मसाइल जो है वो हम मिलके हल करेंगे। फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमाओं ने जुल्फिकार शाह को सिंध सॉलिड वेस्ट से वापस भेजे जाने वाले सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल करने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन कमर आब्दी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कमिश्नर कराची मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो गए। फल सरकारी निर्खनामे से महंगे फरोख्त होने लगे। शहरी और फल फरोशों का महंगाई का शिकवा। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोल्डन सेब की सरकारी कीमत 204 रुपए,
लेकिन मार्केट में 300 रुपए किलो पर पहुंच गया। सेब ईरानी गोल्डन 311 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। केला सरकारी कीमत 94 रुपए के बजाय 150 रुपए दर्जन दस्तयाब। अंगूर 345 के बजाय 600 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल फरोश कहते हैं महंगाई की वजह से फल महंगे हुए। शहरी बोले हुकूमत महंगाई में कमी के दावे कर रही है मगर गरीब की दस्तरस से हर चीज बाहर है। फ्रूट महंगा नहीं है, सेब अच्छे से अच्छा 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रहा है, 100-120 रुपए किलो बिक रहा है। केला अच्छे से अच्छा बड़ा केला 150, 100 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए दर्जन बिक रहा है। 10 रुपए का चीज़ है ना वो 60-70 रुपए में देते हैं, आपके सामने है, तुम आपसे उसको पूछो, लेकिन बहुत परेशान है आवाम। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इंतजामिया को सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराने की हिदायत तो कर दी है लेकिन इस पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग 12 सितंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। इत्तेफाक और इंसाफ पैनल के दरमियान मुकाबला होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स की बागडोर कौन संभालेगा, फैसला 12 सितंबर को होगा। इत्तेफाक पैनल के सरबराह राना तारिक का कहना था कि गुड्स कैरियर के हर 2 साल बाद कानूनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन होते हैं। 1300 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इस बार कांटेदार मुकाबला होगा। 90% से ज्यादा वोट कास्ट होने की तवक्का है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन पाकिस्तान के बाद एशिया में भी पहले नंबर पर आता है। ये वह जमात है, ये कानून के तकाजे पूरे करते हुए हर 2 साल बाद इलेक्शन करवाती है। अभी इलेक्शन कमेटी बैठी हुई है। अभी हमारी तादाद जो है 1300-1400 है, जिसमें एक्टिव वोट कास्ट करने मेरे 1100 के करीब है। और हो सकता है कि इस दफ़ा जिस तरह कांटेदार मुकाबला हो रहा है और वोट 90% कास्ट हो जाए। राना तारिक बोले पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। 21 सीटों पर इलेक्शन होंगे। सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 15 एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इलेक्शन होता है, वोट कास्ट होता है, उसके बाद गिनती शुरू हो जाती है। इसमें हमारे 21 मेंबरान के दौरान इलेक्शन होता है, जिसमें 6 ऑफिस बैरियर और 15 एग्जेक्टिव मेंबरान होते हैं। दूसरी तरफ से भी इस तरह ही अभी हमारे एक इंसाफ पैनल की तरफ से मजमुआ बना हुआ है, एक इत्तेफाक पैनल की तरफ से मजमुआ बना हुआ है, जिसका कांटेदार मुकाबला होगा, जिसका वोट कास्टिंग की डेट है 12 तारीख। सदर की नशिस्त पर मलिक शेर रवान और खालिद खान, नायब सदर के लिए चौधरी फयाज और जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर की सीट पर सफीर शाहीन और फजल इलाही, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए गुलाम आफरीदी और खलील अहमद, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अख्तर अनाई और शफीक अवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए चौधरी खाबर और जुल्फिकार अली का आमना सामना होगा। काविश मेमन, सिटी 21। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में TAE के टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट में 450 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शाहिद जमील ने कहा कि हमारी तवज्जो जदीद टेक्नोलॉजी पर है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जदीद तालीम के लिए पुरअज़म। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से मुंसलिक तलबा के लिए टेस्ट का इनेकाद। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैट्रिक पास तलबा के लिए DEA टेस्ट का एहतमाम किया गया। इम्तिहान में 450 से ज़ायद इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी के माहिर बनने के ख्वाहिशमंदों की शिरकत। प्रिंसिपल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शाहिद जमील ने बताया कि टेस्ट का मकसद तलबा को जदीद तरीन महारतों और इल्म से आरास्ता करना है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ज़माना बदल रहा है, यहाँ पे अब स्किल का दौर आ गया है। बच्चे इंटर भी करते हैं और जो DA जो है ये आज से 2 साल पहले इंटर के मसावी नहीं था, लेकिन अब 2 साल से ये इंटर के बराबर हो गया है। तो इसमें आप जो है वो इंटर भी कर रहे हैं साथ साथ और स्किल आ रही हैं। अब दुनिया में कहीं भी चले आए स्किल का दौर आ गया है, तो आप इस डिप्लोमा के साथ साथ स्किल लेके मार्केट में जा रहे हैं। और हमारा जो है वो तकरीबन 100 के करीब कंपनी से मुआहदा हुआ है जो बच्चों को जॉब देते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट यही हो रही है कि उनको DAE के बच्चे चाहिए। टेस्ट के लिए आए तलबा और वालिदैन दोनों पर ही जोश दिखाई दिए। कहा कि उम्मीद है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आला मयार की तालीम और मौके इनके मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पर DEIL डिपार्टमेंट है जिसमें हम स्टूडेंट्स की जॉब्स और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स बेटर कि स्टूडेंट्स DAE प्रोग्राम में इनरोल्ड हो ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके। इसकी वजह से हमें जो आने वाली फील्ड की जो हम चूज़ करते हैं ना उसके लिए बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि अगर हम हमारी फील्ड आगे जो है CS और IT की तरफ जा रही है सारी और सॉफ्टवेयर की तरफ, तो अगर हम डिप्लोमा ही सॉफ्टवेयर बेस कर रहे हैं अपना, तो आगे जाके हमारा BS में काफ़ी गाइडलाइंस हमें मिल जाती हैं। ब्राइट फ्यूचर है और बाकी आगे के लिए आसानी हो जाती है और
कॉन्फिडेंस आता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से DAE टेस्ट में कामयाब तलबा को मुस्तकबिल में नौकरी के मौके भी फराहम किए जाएंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। तंबाकू नोशी की लत से नौजवानों को कैसे निकाला जाए, इंडस अस्पताल के ज़रिए एहतमाम मीरे कारवां तुम हो के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान कहते हैं नौजवान तंबाकू नोशी के खात्मे में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। इंडस अस्पताल का ऐसा इक़दाम तंबाकू नोशी के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने कहा कि नौजवान तंबाकू नोशी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत को भी इस सिलसिले में इक़दाम करना होंगे। देखें, ये तो मिलजुल के ही होना होगा। ये इतना बड़ा काम है जिसमें हमको सिर्फ हम लोग नहीं करेंगे, आवाम नहीं करेगी, हुकूमत को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। और इसके ऊपर हम ये मकसद ये क्रिएट करने का मकसद ये है कि एक उजागर हो और हायर अथॉरिटीज़ के पास ये पहुँचे और वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि मिल के ही कर सकते हैं। जिस तरह कोविड में इस कौम ने, जहाँ पब्लिक सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर ने जो किया था और पूरी दुनिया ने माना, तो हम लोग पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम चेंज ला सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर माजिद सुमरो ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद बच्चों को मुज़र सेहत अशिया के हवाले से आगाही फराहम करना है। डॉक्टर साइमा सईद बोली, तंबाकू प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन करना होगी। इसमें हमने जो टारगेट किया है ऑडियंस को, दीज आर स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चे। आपको पता है कि ये वो एज है जिसमें टोबैको यूज़ की तरफ इंसान या बच्चा बढ़ता है बेसिकली। सबसे बड़ा मसला नोवल टबैको प्रोडक्ट्स का ये है कि उनकी कोई रेगुलेशन नहीं होती हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। सो हमें इनको इनकरेज करना है बच्चों के थ्रू और हम सब के थ्रू और आपकी मीडिया के थ्रू भी कि इसकी रेगुलेशन किसी न किसी तरह हमें करनी पड़ेगी। प्रोग्राम के शरीक तालीमी इदारों के तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दालों और चावलों का नया सरकारी नेर्खनामा नामंजूर, रिटेलर्स ने सरकारी कीमतों को मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि होलसेल से माल महंगा लेकर सस्ता कैसे बेचें। काविश मेमन की रिपोर्ट। रिटेलर्स का सरकारी नमे से इंकार, दालों और चावलों की मनमानी कीमतों पर फरोख जारी। माश की दाल सरकारी कीमत 473 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त। मूंग की दाल 54 रुपए महंगी 380 रुपए किलो में बेची जा रही है। कर्नल बासमती चावल 336 के बजाय 400 रुपए और सेला बासमती 65 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो सकता। होलसेल पर माल महंगा लेकर सस्ता कैसे बेचेंगे। होलसेलर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर एसोसिएशन की मुशावरत के बाद रेट लिस्ट जारी होनी चाहिए। देखिए, प्राइस लिस्ट तो आ गई है। प्राइस लिस्ट के हिसाब से लोग कोशिश करते हैं कि उससे बेची जाए, लेकिन जब उनको होलसेल में ये रेट पे माल नहीं मिलेगा तो वो रिटेल में नहीं बेच सकते। इसलिए चाहिए कमिश्नर कराची को कि वो जब लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें रिटेलर के नुमाइंदों को भी बुलाए और होलसेल के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे पूछे रिटेलर से कि भाई आप जो कीमतें खरीद रहे हैं ये आपको माल मिल रहा है इस रेट पे या नहीं मिल रहा। शहरी कहते हैं सारी सूरत हाल में मुनाफाखोर फायदा उठा रहे हैं, हुकूमत अपनी रिट कायम करे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तालीम तरक्की का जीना, जदीद दौर में जदीद तालीम ही कामयाबी की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से नम्रा रियासत की रिपोर्ट। या फिर इंसानियत में हासिल करना हो कमाल, इल्म की ही बदौलत ये मुमकिन है। इसी अहमियत को उजागर करने के लिए ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जाता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की के अहदाफ को पूरा करने के लिए तालीम की सीढ़ी का इस्तेमाल सरे फहरिस्त होता है। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह 62.3% है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी 2 करोड़ 62 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। PIE की जनवरी 2024 में शाया की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 39% बच्चे तालीम से महरूम हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 60% बच्चे स्कूल से बाहर हैं और दरमियानी और प्राइमरी सतह पर 44% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। DGHEC नज़ीर हुसैन ने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मादरी ज़बान को फ़ौक़ियत देने पर ज़ोर दिया। जो नीचे की लेवल पे बच्चे होते हैं वो तो
लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं लाजमी आपकी जो असल मदर टंग होती है उसमें ही आप बेहतर पढ़ सकते हैं। उससे ऊपर जब आते हैं तो फिर आपके पास एक लैंग्वेज है, उर्दू है हमारे पास, हम उर्दू को इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेशनली हम इंग्लिश को करते हैं। तो जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो नेचुरली आप इसको इंटरप्रेट करते हैं ना, ब्रेन के अंदर आपका एक मैकेनिज़्म होता है, आप अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग है उसमें अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। PIA के मुताबिक आबादी के लिहाज से मुल्क के 2 बड़े सूबों में तालीम से महरूम बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबा पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद, जबकि सिंध में 70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने यकसा तालीमी निज़ाम पर जोर देते हुए शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए हुकूमत को निचली सतह तक सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। तो जब आप ये स्कीम करेंगे फिर स्कूल में खाना मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, किताबें मिलेंगी और आप कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक होंगे। ख़ास तौर पे इसमें यूनियन कौंसिल का किरदार बनेगा कि यूनियन कौंसिल बाइख्तियार हो, वो अपने इलाके में जो भी बच्चे हैं उन्हें स्कूल पहुंचाए और उनके वालिदैन को मुआवजा दे। तो जब ये आप इक़दाम करेंगे तो फिर लिटरेसी रेट बढ़ेगा। इस तरह ऐलानात करने से और सेमिनार करने से नहीं बढ़ेगा। मुल्क में गुर्बत के बाइस भी 51% बच्चे प्राइमरी सतह पर ही तालीमी जेवर से आरास्ता होने से महरूम रहते हैं। आर्टिकल 25A के मुताबिक अगर रियासत अपने जिम्मेदारियों को निभाए तो मुल्क के बच्चों की अक्सरियत मैट्रिक तक मुफ्त तालीम हासिल करके मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी आबादी के लिहाज से गैर तसल्ली बख्श होने के बायस इसकी बेहतरी और इजाफे के लिए हुकूमत के साथ साथ मुआशरे के हर फर्द को इनफरादी तौर पर संजीदगी से किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्र रियासत, सिटी 21। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम ख़वानदगी मनाया गया। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से कराची के मुकामी होटल में लिटरेसी डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। आयमा खान की रिपोर्ट। तालीम के फ़रोग के लिए कराची के निजी होटल में आलमी यौम ख़वानदगी के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में तालीम निस्वा पर खुसूसी तौर पर पैनल डिस्कशन हुआ। मेहमान खुसूसी की जानिब से किताबों की रोनुमाई की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, होटलों में तकरीब से बेहतर है इदारों या स्कूलों में की जाए ताकि उन्हें शऊर मिले। बजाय 5 डिस्ट्रिक्ट के मुझे नहीं पता क्या है उसकी PC1 का क्या मसला होता है, मैं ज़्यादा इतना वो ब्यूरोक्रेटिक और क्लासिक रेड टेप हर्डल्स जो होते हैं मैं उससे इतना वाकिफ नहीं हूँ। मगर अगर हो सके तो कोशिश ये करो कि अगर आप 3000 सेंटर बना रहे हो, एवरेजली हर डिस्ट्रिक्ट में 100 सेंटर आ सकते हैं, कोशिश ये करो कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100 सेंटर बनाओ। ये अच्छा होगा क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हर ज़िले में मौजूद है। ऐसा नहीं करो कि 5 जिलों में आप उठाओगे, क्या फ़र्क होगा, वहाँ पे 10,000 ज़्यादा होंगे बच्चे। तकरीब में समाजी शख्सियत शहजाद राय ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूजिक टीचर रखे। अब वजीर तालीम की जानिब से खवातीन को टीचिंग लाइसेंस दिए जाएंगे जो खवातीन के लिए बेहतरीन अमल है। बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस मुल्क के अंदर, इस रीजन के अंदर भी रेयर है कि टीचिंग लाइसेंस आ गया हुआ है और जो बच्चियाँ और बच्चे टीचिंग लाइसेंस लेंगे वो सीधा 16 ग्रेड में जाएंगे और इसका पहला टेस्ट हो चुका हुआ है और ये बहुत जल्द लो कैरी लाइसेंस की अनाउंसमेंट होनी है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी है बिकॉज़ ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी और इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जिसका ख्याल रखना था। आलमी यौम ख़वानदगी को मनाने का मकसद तालीम की ज़रूरत और अहमियत पर जोर देना है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और सदर्न गैस कंपनी के इश्तराक से यौम दिफा की मुनासबत से साइकिल रेस हुई। कराची से शुरू होकर हैदराबाद में इख्तिताम पजीर होने वाली साइकिल रेस में
80 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और SSGC के तहत साइकिल रेस का आगाज हसन स्क्वायर से हुआ। रेस में हिस्सा लेने वाले 80 साइकिलिस्ट ने 140 किलोमीटर का तवील ट्रैक अबूर किया। शुरा नेशनल हाईवे ठट्टा घारों से होते हुए टूल प्लाजा हैदराबाद पहुंचे। सदर साइकिलिंग फेडरेशन अजहर खान ने कहा, रेस की बुनियाद SSGC ने रखी। अफसोस है गोल्ड मेडलिस्ट अली इलियास की हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मैनेजिंग डायरेक्टर SSGC इमरान मनियार कहते हैं, कोशिश है कि हर साल रेस का इनेकाद करें। ये साइकिल रेस जो थी इसकी बुनियाद SSGC ने डाली थी और कुछ अर्सा तक ये नहीं हो सकी। अभी ये रिवाइव हो गई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MD साहब का कि उन्होंने ये रेस को दोबारा आगाज़ कर दिया उसका, और आज हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे जो थे एशिया में हमारे साइकिलिस्ट गए थे, अली इलियास था जो SSGC से था, वो 2 गोल्ड मेडल लेके आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की साइड से उसकी हौसला अफजाई नहीं हुई। खवातीन और मर्द साइकिलिस्ट ने इवेंट के इनेकाद समेत पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। तो मैं फीमेल्स को दावत दूंगी वो ज़रूर आएँ। जब इस तरह के इवेंट बड़ा प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सपोर्ट और बहुत ज़्यादा होती है। सो दे शुड डेफिनेटली कम एंड इट्स अ लवली रेस। यहाँ पे तकरीबन हर सूबे से तकरीबन 6 साइकिलिस्ट आए। हमारी भी 6 साइकिलिस्ट की टीम है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जैसे SSG डिपार्टमेंट्स भी है, पाकिस्तान भी है और TGIF वगैरह। हेल्थ एक्टिविटी लाजमी करे, क्योंकि आजकल यंग जो है ना बहुत हेल्थी एक्टिविटी से बहुत दूर है। तो हम सबको यही वो करना चाहते हैं कि वो हेल्थी एक्टिविटी की तरफ आ जाए। SSGC के वजीर अहमद ने एलियट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पर फरवान मोहम्मद और तीसरी पर वलीद आए। एमेचर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने पहली पोजीशन हासिल की। वुमेन ओपन कैटेगरी में SSGC की राबिया गरीब की पोजीशन रही। किंजा मलिक दूसरी और समीरा तीसरी पोजीशन पर रहीं। इवेंट के फातेह साइकिलिस्ट को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त